Good evening, 12th class. So slowly and gradually we are in the page number 54, and the topic today is agriculture versus industry. As the name of the topic suggests, that after the first and the second 5-year plan, actually the leaders of India has been, you can say, bifurcated into two parts. One part is saying that we should go for the agriculture sector, and second part is saying, second type of leader are saying that we should go for the industries, the development of industries first. So both the type of leaders are having some of the great leaders. First, there is J.C. Kumarappa, who is the Gandhian, who is a type of Gandhian thinking, Mahatma Gandhi's thinking. His photo is pasted on page number 55. You can see that, and it is written that Gandhian economists like J.C. Kumarappa proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialization. He thinks that we should put more effort on the industrialization, whereas another leader of Congress, who was Chaudhry Charan Singh, he was very famous farmer leader. He says, चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस लीडर हु लेटर ब्रोक फ्रॉम द पार्टी टू फॉर्म भारतीय लोकदल. इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय लोकदल, एंड इन्होंने कहा कि हमको ज़्यादा एम्फोसिस एग्रीकल्चर के ऊपर रखना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस एट दैट टाइम आर फार्मर्स, सो वी हैव टू पुट मोर फोकस ऑन farming, or you can say agriculture. But Kumarappa think differently. He thinks that we have to put more focus on industries, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखेंगे तो इंडस्ट्रीज से हमारी एग्रीकल्चर को भी हेल्प होगा और इंडस्ट्रीज़ में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी. सो देयर इज़ ए बाइफर्केशन. बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, और इस लड़ाई के बीच चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा भारतीय लोकदल. और ये इतने बड़े किसान नेता थे, आप इस बात से ही इसको समझ सकते हो कि इनके बर्थडे जो 23 दिसंबर को हम लोग फार्मर्स डे मनाते हैं, ये फार्मर्स के लिए इतना ज़्यादा इनका योगदान था. और फिर इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय लोकदल बनाई. ठीक. नेक्स्ट इज in page number 55. He said that the planning was leading to creation of prosperity in urban and industrial section at the expense of the farmer and rural population. इन्होंने कहा कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, इन्होंने का मतलब चौधरी चरण सिंह had said that because more of our population at that time was devoted towards the agriculture, so we have to put more focus on the agriculture rather than industries. But Kumarappa think differently, and therefore Mr. Chaudhry Charan Singh has resigned from the Congress and made his own party, that is Bharatiya Lokdal. Then others thought that without a drastic increase in the industrial production there could be no escape from the cycle of poverty. कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि हमको इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में फोकस रखने से हमारी एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा होगा. मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से. और साथ में ही हमारी जो पावर्टी है, जो हमारी गरीबी है कुछ लोगों की, जो लोग खेती नहीं कर पाते हैं, कम से कम वो इंडस्ट्रीज़ में काम कर लेंगे तो उनको जॉब भी मिल जाएगा. So they argued that Indian planning did have an agrarian strategy to boost the production of food grains. The state must made laws for land reform and distribution of resources among the poor in the villages. इनका ये कहना था कि हमारे देश को लैंड रिफॉर्म्स करना चाहिए. लैंड कौन सी टाइप की लैंड किस आदमी को दी जानी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़ के गए तो जो अमीर आदमी थे उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हथिया लिया, खरीद लिया मुँह मांगे दामों में, बहुत सस्ते दामों. तो कुछ इंडस्ट्रीज़ का या कुछ लीडर्स का ये मानना था कि जो लैंड है, जो गरीबों से बहुत मनमाने दामों में ली गई है, बहुत औने पौने दामों में ली गई है, उनको वापस गरीबों को देना चाहिए. लैंड रिफॉर्म हम लोगों को करना चाहिए. It is also proposed programs of community development and spend large sum on irrigation project. और ये भी बोला गया कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च 5-year प्लान के तहत एग्रीकल्चर और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम जो रोटी कपड़ा और मकान होती है, तो किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अनाज, फूड पूरा होना चाहिए. द फेलियर वॉज नॉट दैट ऑफ पॉलिसी बट इट्स नॉन इम्प्लीमेंटेशन, because of land-owning classes had lot of social and political power. Besides, they also argue that even if the government had spent more money on agriculture, it would not have solved the massive problem of rural poverty. But इसी के साथ
गवर्नमेंट तो एक ऐसे स्थिति में पहुंच गई थी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देती तो हमारी पॉवर्टी कैसे जाएगी। इस कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में हुआ क्या, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पब्लिक सेक्टर की तरफ गए या प्राइवेट सेक्टर की तरफ गए, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं बात जानता हूँ कि हम बहुत शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, बहुत स्लोली पढ़ रहे हैं, पर हमको क्वालिटी वाली एजुकेशन करनी है। थैंक यू।